Hello dear students, welcome to our channel Rejoice Education. Today we are starting chapter number 7 Mensuration class 10th English medium Maharashtra State Board. Hello dear students, now we are on page number 149. On page number 149 we have to see the new topic, and the new topic is sector of a circle. So let's find out what is mean by sector of a circle. Now students, have a look on this figure 7.25. A circle is given with center O and it has given a central angle. Central angle is denoted by theta. The arcs are also given, arc P, M, Q, and the other one is P, B, Q. So in the adjacent figure, the central angle divides the region into two parts. See, this central angle is dividing the region into two parts. This portion, I'll shade this portion for you guys. This portion is the smaller portion and the other portion is the bigger portion. Each of the parts is called as sector of the circle. So each of these parts, like from P, O, Q, this angle encloses the one sector, and the outside this particular angle here is the bigger area. So this is the another sector. So sector of the circle is the part enclosed by two radii of the circle. सर्कल का जो सेक्टर होता है वो दो रेडाई के बीच में, जो दो रेडियस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OP एंड OQ, ऐसे दो रेडियस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है. सो उनके अंदर यहाँ पर जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्टर ऑफ द सर्कल. सो ये पोर्शन जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर शेड करके दिखाया है, ये पोर्शन भी रेडियस के बीच में है, एंड द बिगर पोर्शन, जो आप ये बिगर पोर्शन देख रहे हो, ये बिगर पोर्शन भी रेडियस के अंदर ही आता है. सो हम लोग बोल सकते हैं सेक्टर ऑफ a circle is the part enclosed by two radii of a circle and the arc joining their end points. So यहाँ पे जो arc यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, arc P, M, Q, उनके end points पे join करता है, P and Q पे join करता है. So this is the one sector and the other one is the other sector of the circle. So in this way we can see the two sectors of a circle. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन द फिगर 7.25 ओ पी एम क्यू एंड ओ पी बी क्यू आर टू सेक्टर्स ऑफ द सर्कल. यहाँ पर ओ पी एम क्यू मतलब सेंटर ओ एंड पी एम क्यू ये एक सेक्टर होता है, एंड उसके बाद दूसरा सेंटर ओ एंड पी बी क्यू ये दूसरा सेक्टर होता है. इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को फिगर 7.25 में दो सेक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं. इसमें से एक एरिया बड़ा है एंड एक एरिया छोटा है. इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. सो जो PMQ है, PMQ इज़ द माइनर सेक्टर एंड PBQ जो है वो है मेजर सेक्टर. सो इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर, then we have a formula. Area of sector is equals to theta upon 360 into pi r square. Pi r square is also the formula for area of a circle, right? So area of sector is equals to theta upon 360 into pi r square. And if we have to find out the length of an arc, then our formula is theta upon 360 into 2 pi r.
2 pi r is the formula for circumference of the circle, right? So length of an arc can be calculated with the help of this formula, theta upon 360 into 2 pi r. And area of sector can also be find out with the help of length of the arc into radius upon 2. सो इफ़ इन सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क दिया है एंड रेडियस दिया है, सो लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का मल्टीप्लिकेशन करके उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 154 ऑफ द टेक्स्ट बुक. ऑन पेज नंबर 154 ऑफ द टेक्स्ट बुक वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 7.3. Practice set 7.3 question number 1. Radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degree. जो हम लोगों को आर्क ऑफ अ सर्कल है उसका मेजरमेंट दिया है 54 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क. हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस पर्टिकुलर आर्क से एसोसिएटेड है. सो सॉल्यूशन देखते हैं. द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. देन मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मेजर ऑफ आर्क दिया है दैट इज 54, थीटा की वैल्यू दी है 54 डिग्री. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. सो फॉर्मूलाज में वैल्यू पुटअप करके हम लोग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे. थीटा की वैल्यू 54 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू लिखा है 3.14 इंटू 10 इंटू 10. 10 इंटू 10 मीन्स रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर इंटू आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10. तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, देखिए ये एक ज़ीरो काट दिया है एंड एक ज़ीरो यहाँ से काट दिया है. सो दैट विल बी, यहाँ पर ये 10 जो है वो चला जाएगा एंड यहाँ पर 360 जो था उसका 36 हो जाएगा. अब हम लोग ये जो फ्रैक्शन है 18 3 ज़ा 54 एंड 18 2 ज़ा 36 होता है. सो आप लोग यहाँ पर देखिए 18, मैंने दोनों 54 एंड 36 को 18 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 3/2. सो यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए 3/2 इंटू 3.14 एज इट इज़ इंटू 10. एक 10 तो चला गया, एक ही 10 बचा था. सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इस 2 को 2 1 ज़ा 2 कर सकते हैं एंड इसको हम लोग कट कर देंगे तो वो हो जाएगा 1.57 हो जाएगा 1.57. सो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा. 3 इंटू 1.57 इंटू 10. सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, 3 इंटू 1.57 इंटू 10. आप लोगों को पता होना चाहिए अगर 3.14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.57. सो 3 इंटू 1.57 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 practice set 7.3 area of sector associated with the given arc is 47.10 centimeter square. Practice set 7.3 textbook page number 154 question number 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को देखिए मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, जो मेजर ऑफ एन आर्क है वो दिया है 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज़ 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क. आर्क का लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट मेजर ऑफ एन आर्क. सॉल्यूशन देखते हैं. मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, थीटा की वैल्यू हमको 80 डिग्री दिया है एंड रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क अगर हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर जो है वो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है. जब हम लोगों को लेंथ निकालनी है तो हम लोग 2 पाई आर का यूज़ करते हैं और एंड जब हम लोगों को एरिया निकालना होता है हम लोग पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा का वैल्यू है 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर. पाई का वैल्यू यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिख दिया. पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 18. सो यहाँ पर हम लोग
इसको 0 0 कट कर देंगे। 8 ऊपर 8 है, नीचे 36 है। सो यहाँ पर 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 और कर सकते हैं जिसको। इसके बाद ये जो 2 है ये 2 भी कट कर लेंगे एंड यहाँ पर अभी सिर्फ बचेगा 3.14 इंटू 8। तो देखिए आप लोग यहाँ पर नीचे बचा है 3.14 इंटू 8, क्योंकि वही बचता है सब कट एंड स्ट्राइक ऑफ करने के बाद। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225.12 सेंटीमीटर। Therefore, in question number 2, length of an arc is 25.12 centimeter. Question number 3 देखते हैं। Radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of the sector. Sector का area find out करना है। Radius r of a sector of a circle is equals to, जो रेडियस है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है 2.2 सेंटीमीटर। हम लोगों को पता है अगर लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस हम लोगों को दिया है तो हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना है। तो दूसरा फार्मूला ये है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपॉन 2। सो लेंथ ऑफ एन आर्क इज़ 2.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस वे इन क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर भी यहाँ पर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो है उसका हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू हम लोगों को लेना है 3.14। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। 3.14 इंटू 10 इंटू 10, हमारा आंसर आता है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज़ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को जो दिया है दैट इज़ फॉर द माइनर सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है इट इज़ गिवन फॉर द माइनर सेक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर माइनर सेक्टर हम लोग मेजर सेक्टर जो है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया फॉर द मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज़ 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 314 माइनस 100 दैट एंड द आंसर इज़ 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज़ 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को दिया है एंड हम लोगों को फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो आर्क होता है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोगों को दिया है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 30 सेंटीमीटर। सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क, बिकॉज यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क आता है। लेंथ ऑफ द आर्क हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। सो लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस। सो लेंथ ऑफ द आर्क हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को पता है 30 हमने लिख दिया है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है इनटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर इसकी साइड चेंज कर देते हैं 30 के साइड इसको लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करेगा। जो 15 है 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर 30 के साइड इसको लेकर जाते हैं तो डिवाइड करेगा। सो देयर फॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू
देखिए 2 डिवाइड कर रहा था, अभी मल्टीप्लाई कर रहा है 30 के साथ, 15 मल्टीप्लाई कर रहा था, अब कर रहा है डिवाइड। सो 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 15 जो होता है आंसर आ जाएगा 4। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। इन द फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क MBN इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जो MBN ये जो आर्क है उसका थीटा हम लोगों को दिया है, थीटा की वैल्यू है 360, सेंट्रल एंगल यहाँ पर दिया है। फाइंड, अब हम लोगों को बोला है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सबसे पहले तो रेडियस की वैल्यू अगर हम लोगों को पता है तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर MBN, एरिया ऑफ सेक्टर MBN भी फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ सेक्टर MCN जो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर दोनों का सेक्टर हम लोगों को दोनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इजी है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में, उसका वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, रेडियस हम लोगों को 7 दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोगों को 7 इंटू 7 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक 7 एंड एक 7, यहाँ पर तो ऐसे ही कट जाएगा। सो उसके बाद स्ट्राइक ऑफ करने के बाद 22 इंटू 7, 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहले हम लोगों को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर MBN इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है ये, आप लोग अभी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए एरिया ऑफ सर्कल ही लेंगे। सो थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू, सेंट्रल एंगल हम लोगों को दिया था 60, सो 60 अपॉन 360 इंटू 154। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए 60 का यहाँ पर 60 और 360 1/36, बस 0 0 कट करने के बाद 1 और 6/36 बचा है। देखिए 6/36 को हम लोग अगर दोनों साइड को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर यहाँ आएगा 1/6 इंटू 154 एंड 154 को अगर हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 6। तो 154 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आता है 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को जो दिया है सब क्वेश्चन, उसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर MCN। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर MCN इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर MBN। सो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ एरिया जो रहेगा वो रहेगा मेजर सेक्टर। दैट्स वाई 154 माइनस 25.7, 154 में से 25.7 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर आ जाएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर, area of minor sector is 25.7 centimeter square and area of major sector is 128.3 centimeter square. Now we are on page number 155 of the textbook. On page number 155 we have to see question number 7 of practice set 7.3. So let's see the solution for the question number 7. सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 7.32 दिस इज़ द फिगर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 3.4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का जो पेरीमीटर है ABC, जो यहाँ तक जो पेरीमीटर है दैट इज़
12.8 सेंटीमीटर। सो जो आर्क रहेगा उसकी लेंथ भी है, हम लोगों को पता है लेंथ ऑफ द आर्क इज ABC, लेंथ ऑफ द आर्क ABC इज़ 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। अब हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर ABC. सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर ABC. तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम लोग जो हमारा सेकेंड नंबर का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी. नाउ we have to see the solution of question number 7, practice set 7.3, page number 155. So radius r of the circle is equals to 3.4 सेंटीमीटर. रेडियस r जो है वो 3.4 सेंटीमीटर दिया है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P ABC, आर्क ABC का पेरीमीटर हम लोगों को दिया है 12.8 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P ABC इज इक्वल्स टू रेडियस प्लस रेडियस r प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC. इन तीनों से मिलकर यहाँ पर पेरीमीटर बन रहा है ऑफ सेक्टर ABC, राइट. सो 12.8 इज इक्वल्स टू 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ABC. अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क ABC फाइंड आउट करनी है. सो लेंथ ऑफ द आर्क ABC हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3.4 प्लस 3.4 इन दोनों को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा और उनकी टोटल 12.8 से माइनस करनी पड़ेगी. सो आप लोग देख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल्स टू 12.8 माइनस 6.8. तो आंसर आता है लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ABC निकाला है जो कि आया है 6 सेंटीमीटर. अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ABC हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ABC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपॉन 2. सो लेंथ ऑफ द आर्क हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है विच इज़ 6 इंटू रेडियस का लेंथ है 3.4 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज़ 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज़ एरिया ऑफ सेक्टर ABC इज इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 155, प्रैक्टिस सेट 7.3, क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर. सो यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिया है स्टूडेंट्स. सेक्टर ऑफ सर्कल का फिगर आप लोग देख सकते हैं. O इज़ द सेंटर ऑफ द सेक्टर. O यहाँ पर आप लोगों को सेंटर दिया है एंड एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल MON एंड ROQ. इन दोनों का जो लेंथ सेंट्रल एंगल है वो एंगल आप लोगों को दिया है. देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ROQ. यहाँ तक जो सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का रेडियस का वाला सेक्टर है, एक्चुअली यहाँ पर 2 सेक्टर्स है. ओके, एक छोटा सेक्टर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड उसके बाद एक बड़ा सेक्टर आप लोग देख सकते हो जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, जो छोटे सेक्टर से 3 गुना बड़ा है. लेकिन दोनों का एंगल ROQ एंड एंगल MON दोनों का सेंट्रल एंगल जो है वो इक्वल है विच इज़ 60 डिग्री. OR इज इक्वल्स टू 7 हम लोग देख चुके हैं एंड OM इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN. RXQ और MYN. RXQ तो ये है, यहाँ पर आप लोगों को शेड करके दिखाता हूँ. ये आर्क RXQ है एंड दूसरा जो है ये RMYN है, आर्क MYN. ये दोनों आर्क आप लोगों को दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. फाइंड द लेंथ्स. आप लोगों को RXQ एंड MYN दोनों का लेंथ्स फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर्क RXQ का लेंथ निकालेंगे. उसमें रेडियस हमको दिया है OR जो कि है 7 सेंटीमीटर. सेंट्रल एंगल जो कि थीटा है वो दिया है हम लोगों को 60 डिग्री.
उसके बाद हमारा जो फॉर एम वाई आर्क एम वाई एन में जो ओ एम है वो हमको रेडियस दिया है जो कि है 21 सेंटीमीटर। एंगल एम ओ एन जो है, जो कि थीटा है, सेंट्रल एंगल जो है 60 डिग्री। सो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है, सरकमफरेंस के फॉर्मूला के साथ कंबाइन करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। सो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। एंड रेडियस आर जो है वो उसकी वैल्यू हम लोगों ने ली है 7, रेडियस आर की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर हम लोग जो 2 है उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग 60/160 का 1/6 आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इंटू, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो 2 इंटू 22 हो जाएगा 44। 44 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 6। 44 डिवाइडेड बाय 6 अगर करते हैं, 44 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आया है लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, आर्क एम वाई एन का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। एंड हमारा जो बड़ा वाला यहाँ पर ओ एम हमारा रेडियस रहेगा, बड़ा वाला रेडियस हमारा रेडियस रहेगा यहाँ पर। सो दैट विल बी 21। सो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। Therefore, length of arc RXQ is 7.3 centimeter and length of arc MYN is 22 centimeter. This is the final answer of question number 8.